A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our uh, chapter 6 of your political science book, chapter number 6, Understanding Media. It comes under unit 4 of your book, that is media. Okay, so in our one of earlier chapter of geography, which we studied uh, in our prior class, your chapter, that chapter is like human environment, and under that chapter we talked about communication. So there are uh, means of communication. We talked about means of communication: televisions, radios, newspaper, internet. Okay, all these are the means of communication. So under that, media is something which also plays a very important role. Okay, so as you all have seen, uh, like in today's world, the media, okay, it is one of the communicating tool used by various people to deliver their messages. So the media and advertising are a pervasive presence in the lives of young people who may or may not have taken the opportunity to seriously reflect upon this fact. So basically in this unit um, we are going to focus on some of the things, some of the strong links between media and technology, ki how media and technology connected with each other, and how there is a strong link between media and technology, and how media plays a very important role in our life to promoting our businesses, to aware people, to reflect on different issues of people. So basically this media, which is one of the communicating tool, plays a very important role in our life. Okay, through TV, television, where you see various types of news channels are there, where you see like many cartoon channels are there, music channels are there. Okay, there are so many different types of channels according to our needs. So all these TV channels, all these types of TV news, newspaper reports, or internet, email, or you can say WhatsApp or Twitter, blogs, different blogs are there. All these are the part of मीडिया. ठीक है, सब मीडिया के ही पार्ट हैं. ठीक है, जिससे हम अवेयर होते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है, जिससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है. So, chapter 6, Understanding Media. So, here in this chapter, just look at this picture. You see different types of pictures are there. There is a collage of communication. So, all these people from various means of communication tools, they are like communicating with different uh, people with different technological uses. So here look at this girl. Okay, she is talking on the phone. Here look at those persons, they are singing, or like they are recording something. Take care. Look at this advertisement, or you can say a banner, which is awareing people about cyber cafe. Okay, book your .com, rupees 350. तो here एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं. Here people are campaigning. ठीक है, in our last chapter of political science we talked about campaigning, women change the world, and under that we talked about campaigning. So through this banner, they are using this banner, and they are
they are raising their voice, okay, for something they want. Like here I think it is for like justice, they want justice for something, so they are like campaigning or rallying. Okay, so all these are the means of media. Media means uh, to communicate with people. So here, understanding media. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet, and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspapers, internet, and several other forms of communication? And this word is media. So basically in this chapter we will read about media. We will talk about TV, newspapers, internet, and several other different means of communication. So we all have we all have our own favorite TV program. Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. Media is the plural form of the word medium, okay? And it describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication. Everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. TV, radio, and newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. So everything, like for example, if you visit if you visit at the local fair, okay, or you can say if you visit to attend some kind of program near to your house, ठीक है, वहां पे कोई एक लोकल फेयर या ठीक है मेला टाइप्स लगा है या वहां पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहां से लेके अगर आप घर पे टीवी भी देख रहे हो, ठीक है, चाहे न्यूज देख रहे हो या फिर म्यूजिक भी सुन रहे हो या मूवी भी देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है, मीडिया है। और मीडिया जो वर्ड है आपका प्लूरल फॉर्म है। हम मीडिया का मीडियाज नहीं करते हैं कि मैम टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, सारी चीजें, इतने सारी चीजें तो हम मीडियाज बोलेंगे ना। नो, मीडिया इज अ प्लूरल वर्ड, ओके। एंड किसका प्लूरल है, वो है मीडियम का प्लूरल है। So there are different ways through which we communicate in our society, and that's why media refers to all means of communication। जितने भी means of communication है, जिसके भी थ्रू आप अपने messages को convey कर सकते हो, आप अपनी information को कन्वे कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, कम्युनिकेशन का मीडिया है, मीडियम है, ठीक है। एंड जब हम टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मूवीज के थ्रू बहुत सारे लोगों तक अपनी आवाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। ठीक है, मास मतलब होता है बहुत सारे। तो मास मीडिया इज नॉर्मली जब हम बहुत सारे लोगों को बहुत when we convey our message or deliver our message uh, to a large population, that is known as mass media, okay. Okay, now look at the collage on the left and list 6 various kinds of media that you see. So there, here is the collage, okay. You have to look after this collage, हमने discuss कर ही लिया है वैसे। Now your homework is you have to mention various kinds of media which you see। आप जो daily life में मीडिया, जो भी मीडिया यूज करते हो, जो भी मीडिया आप देखते हो, उसका आपको क्या करना है, आपको लिख के रखना है। मैं आपसे कल पूछूंगी। So now our next topic is media and technology. So how media and technology interlinked to each other.
What is the link between media and technology? Media, as you all know, the means of communication. In simple words, all the communicating tools comes all the communicating tools come under media. And technology is the like inventions or the things which we are using. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग कंप्यूटर, दिस इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी ना, इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर का तो ये एक टेक्नोलॉजी ही तो है, फोन्स हो गए, ठीक है. सो ऑल दीज आर like technology. So how media and technology interlinked with each other? So it would probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. So suppose इमेजिन करो कि ये कोविड का टाइम है, ठीक है. अभी कोविड के टाइम पे हम सब ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई कर पा रहे हैं. बट फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते, ठीक है, और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो क्या आप इस साल जब ये लॉकडाउन था तो आप क्या ये स्टडीज कर पाते? ऑनलाइन के थ्रू आप जितनी भी पढ़ाई कर पा रहे हो, आप जो कर पा रहे हो, आप ऑनलाइन के थ्रू अपनी ये इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हो. बट सपोज ये सारी चीजें नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, ठीक है, या मीडिया नहीं होता, तो हमने अपने लॉकडाउन पीरियड में टीवी को देख के, डिफरेंट डिफरेंट मूवीज देख के, म्यूजिक सुन के, खाना बना के, बहुत सारी चीजों से हमने अपना लॉकडाउन पीरियड जो है इजीली क्या कर लिया, कहीं ना कहीं स्पेंड स्पेंड कर लिया ऑनलाइन क्लासेस लेके. और हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस देके क्या कर दिया कि स्पेंड कर लिया लॉकडाउन पीरियड जो भी है हमने, अभी हम कर भी रहे हैं. बट वही अगर सपोज ये सारी चीजें होती नहीं तो क्या होता? टीवी भी नहीं होती है आपके पास गाने सुनने के लिए भी नहीं होते, तो आप कम्युनिकेट कर पाते? इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कैसे रह पाएंगे, ठीक है. तो ये जो हम टेक्नोलॉजी, जो ये मास मीडिया यूज कर रहे हैं, टेलीविजन वगैरह यूज कर रहे हैं, इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, ये कुछ 20-25 ईयर्स से यूज होना स्टार्ट हुआ है. इससे पहले ये सारी चीजें यूज नहीं होती थी, ठीक है. So newspapers, televisions and radio can reach millions of people because they are certain technologies. अब ये newspapers, televisions, radio ये सारी चीजें क्या है, लोगों तक के पास पहुंच पा रही है, लोगों बहुत सारे लोगों को हम अपना मैसेज दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज ना. न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, रेडियो ये सब टेक्नोलॉजीज के वजह से ही कि इनका इन्वेंशन हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई और इसके वजह से हम अपना मैसेज डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी क्लासेस ले पा रहे हैं, ये इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी आई उसके वजह से. We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. अब ये बात अलग है कि जो हमने मीडिया है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Print media because magazines, newspapers which we are reading is in the books, is in the form of like प्रिंटिंग ना, लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रिंट मीडिया का नाम दे दिया. एंड टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और हम पढ़ भी सकते हैं, तीनों चीज को. इसलिए इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेम दे दिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा. सो व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? So as you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which the technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. अब देखिए, हम अभी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. तो हमने न्यूज़पेपर्स को प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे वर्ड्स क्यों दिए हैं, ठीक है. अब देखो बहुत सारे चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजीज में,
बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो हम उनको इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, सेग्रीगेट कर पाए, इसलिए हमने जितना भी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, आपका ऐसी चीजें, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको हमने प्रिंट मीडिया में डाला, और ये जो रेडियो, टेलीविजन, आपका इंटरनेट हो गया, इन सबको हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाला। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, देखो, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। अब आप अपनी फर्दर क्लासेस में पता है ये पढ़ोगे कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, ठीक है, पहला प्रिंटिंग प्रेस कितना टाइम लगाता था एक पेज को प्रिंट करने में। अगर अभी मैं आपको बोल दूं कि आपको 10 पेजेस का प्रिंट निकलवाना है, आप 1 मिनट में क्या है, आप वो लेके जाओगे प्रिंटर, फोटो कॉपी वाले भैया के पास, या आपके घर पे प्रिंटर है, आपने क्या करोगे, आप प्रिंट निकलवा लोगे, 1 मिनट में आपका प्रिंट निकल जाएगा। बट वही पहले के टाइम पे एक एक पेज को प्रिंट करने के लिए बहुत टाइम लगती थी। तो ये जो है पिक्चर देख रहे हो आप, वो किसकी है, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल। आर्टिस्ट का नाम क्या है, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जो थे पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने प्रिंटिंग को प्रिंटिंग लेकर आए थे, और उन्होंने बाइबल, पहली जो बुक आपकी प्रिंट हुई थी वो कौन सी बुक थी, बाइबल थी। वो बाइबल का फर्स्ट पेज जो है प्रिंट कर रहे हैं। So, changing technologies or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this. It also changes the way in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. Television images travel huge distances through satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. देखिए, टेक्नोलॉजीज के चेंजेस आने में, मशीन्स के चेंजेस आने में, ठीक है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है जैसे जैसे मॉडर्न होती जा रही है, हमारी मीडिया जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। फॉर एग्जांपल, आज आप टेलीफोन में देखते हो, या फिर आपने क्वाइटली बहुत ऑफनली आप अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे कि आज के टाइम पे तो तुम्हें इतनी सुविधाएं मिल रही है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो इंटरनेट पे देख सकते हो। हमें अगर देखना होता था तो हमें लाइब्रेरी में जाके बुक्स के बारे में सर्च करना, बुक्स में, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको अभी मैं आपको बोलूंगी कि महात्मा गांधी के बारे में रिसर्च कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट में जाओगे, महात्मा गांधी लिखोगे, अब महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। या फिर अपने वही सेम, मैं आज से 25 ईयर्स पहले आपके पेरेंट्स जो थे, ठीक है, उनको अगर हम बोलते कि महात्मा गांधी के बारे में रिसर्च करनी है, उनके बारे में बहुत सारी रिसर्च करनी है, बहुत एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें आप आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है एकदम एकदम से जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ला पाते, ठीक है, उनको लाइब्रेरीज जाना पड़ता, उनको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए हैं, मशीन्स में चेंजेस आई है, हमारी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मॉडर्न हुई है, वैसे वैसे ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रही है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। पहले जो फ़ोन यूज़ किया करते थे, पहले वो घर पे ही फ़ोन होता था, वायर से कनेक्टेड होता था, उसी से क्या कर पाते थे, बात कर पाते। बट आज की डेट में हम कहीं पे भी जाके फ़ोन, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम आराम ईज़िली क्या कर पाते हैं, फ़ोन यूज़ कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। पहले के टाइम पे फ़ोटोज़, ठीक है, फ़ोन में क्या था, कैमरा नहीं होता था, तो हमें अगर कोई पिक्चर क्लिक करना होता था तो हमें क्या है, अलग से कैमरा भी लेके जाना पड़ता था। बट आज की डेट में अगेन हमारे पास एक अच्छा फोन है जिसमें एक अच्छी फोटो आ सकती है, ठीक है। तो वैसे फोन, ये हमारी जो इमेजेस हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की या फिर फोटोज वगैरह देखी होगी, उस टाइम की पिक्चर क्वालिटी और आज की पिक्चर क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, आप
नहीं देखी है तो आप लोग देखना कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ना, या फिर अपने पेरेंट्स को बोलना कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पिक्चर्स दिखाएं, उनकी जो पिक्चर्स हमें दिखाओ, और उनकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर में और आपकी जो पिक्चर्स आज की है उनमें आप डिफरेंस देखना, कितना डिफरेंस होगा क्वालिटी में, आप बहुत क्लियर इमेजेस देख पाओगे, ठीक है। बट साउंड की क्वालिटी या इमेज की क्वालिटी ही टेक्नोलॉजी ने चेंज नहीं की है। टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने और भी बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने लेकर आए हैं। जैसे आज के डेट में हम टेलीविजन को देखें तो अब ये बहुत नॉर्मल होता है कि आज मोस्टली हम सबके घर पे टेलीविजन होता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लैपटॉप या कंप्यूटर या टेलीफोन, ठीक है, या मोबाइल फोन, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन से कार्टून्स आ रहे हैं, कौन से न्यूज चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा है। सो हम टेलीविजन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हम न्यूज़ देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की मूवीज देख रहे हैं, जिसमें हमें वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताते हैं वो लोग, ठीक है। तो टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। अब सैटेलाइट्स और केबल्स के थ्रू जो है टेलीविजन की जो इमेजेस है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप अमेरिका में बैठे हो और अगर अभी आप हम लोग बीकानेर में, ठीक है, बट हमें अमेरिका की पिक्चर्स देखनी है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ठीक है, अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, हम वो सारी चीजें क्या है इजीली देख सकते हैं। सो जो आपके कार्टून्स आप देखते हो, ठीक है, जितने भी आप डोरेमोन देखते हो, छोटा भीम देखते हो, या फिर स्कूबी डू भी आता था हमारे टाइम पे, टॉम एंड जेरी आता था, ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो कार्टून्स है कहाँ से है, जापान से, जापान में बने हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में बने हैं, बट हम आज की डेट में यहाँ पे देख सकते हैं ना, हमें पसंद आते हैं ना वहाँ के कार्टून्स इतने, ठीक है। अगर आप चेन्नई में बैठे हो, ठीक है, या फिर जम्मू में भी बैठे हो, या फिर हम बीकानेर में ही क्यों ना बैठे हो, कहीं पे अर्थक्वेक आया है या फिर कहीं पे सुनामी आई है तो हमें पता चल जाएगा ना। तो टेलीविजन से हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है, टेलीविजन से, इंटरनेट से। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आने के कारण क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और हमें एक दूसरे से काफी क्लोज कर दिया है, ठीक है। आज के टाइम पे हमें किसी से भी बात करनी होती है, हमें अपने पेरेंट्स, सॉरी, आपको आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं और रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से बाहर, चलो आप बीकानेर में रह रहे हो और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बैंगलोर में रह रहे हैं, तो अगर आज के टाइम पे अगर आपको उनसे बात करनी है, आप तुरंत बात कर सकते हो, आप आपको उनकी फोटो देख के बात करनी है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, उनसे नॉर्मल कॉल करनी है, आप नॉर्मल कॉल कर सकते हो। बट वही आज से अगर हम 15 इयर्स बैक जाएं, अगर हमें 20 इयर्स बैक जाएं, हमें बात करनी होती थी तो हम बहुत सोच समझ के बात करते थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ करता था और इतना इजी नहीं हो पाता था बात करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज ने, ठीक है, मीडिया के साथ लिंक होते हुए टेक्नोलॉजीज ने क्या है, हमें आपस में कनेक्ट किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी गिवन है, किस चीज की पिक्चर गिवन है, विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के साथ, पहले तो ऐसे ही था, पेपर लगा लगा के हमें टाइप करना पड़ता था, बट आज के डेट में हम नॉर्मली क्या है, कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं, लैपटॉप में भी टाइप कर सकते हैं, और जो टाइप करना है आराम से इजीली टाइप कर सकते हैं। तो 1940s में जब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स का इन्वेंशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म में काफी चेंजेस आए थे। ठीक है, अब देखिए जॉन एल बेयर्ड, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, जॉन एल बेयर्ड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus in with which he demonstrated to the Royal Institute his invention, the television and early television। जॉन एल बेयर्ड ये इन्वेंटर थे किसके, टेलीविजन के। ये जो आप देख रहे हो सामने पिक्चर,
वो रॉयल इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट है, उनको क्या कर रहे हैं, वो अपना डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम टेलीविजन का कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने अपने इन्वेंशन को रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने, और उन्होंने अपने पहले टेलीविजन का नाम दिया था टेलीविजर। ठीक है, किसने दिया था? जॉन एल बेयर्ड ने। वो वहाँ के जो एपरेटस एपरेटस मतलब कि जो भी मेंबर्स होते हैं ना, रॉयल इंस्टीट्यूट के जितने भी मेंबर्स थे, जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, उनको एपरेटस बोला गया है यहाँ पे। तो वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं अपना फर्स्ट टेलीविजन, जिसको हमने टेलीविजन बोला है। और इसके बारे में बता रहे थे। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सो गो थ्रू दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, you can approach to me in my next class. Take care of yourself. Bye bye.